यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 172 से हमारा होना है। निकाल दीजिए आयत नंबर 172। लन यस्तनकिफ़ल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि बल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तनकिफ़ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। हरगिज़ भी आर महसूस नहीं करते हैं मसीह के वो हैं अल्लाह के बंदे और ना ही मुक़र्रब फरिश्ते, और जो अल्लाह की इबादत से आर महसूस करेगा और अपने आप को बड़ा समझेगा तो जल्दी ही वो उन सबको अपनी तरफ जमा करेगा, इकट्ठा करेगा। इससे पहले भी आपके सामने जो जिक्र चल रहा था वो ये था कि दीन के मामले में गुलू ना करो, ज्यादती ना करो, आगे ना बढ़ जाओ। और अल्लाह ताला ने मिसाल देकर समझाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। मैं रुखसाना। कल मैंने ज्वाइन किया था ना फर्स्ट टाइम, तो अभी मुझे कुछ कुरान की वो दिखाई नहीं दे रहा है जो सूरह निसा की चल रही थी तफसीर, तो स्क्रीन पे नहीं आ रही है, अभी शुरू नहीं हुई है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अभी क्लास शुरू नहीं हुई जी, अभी शुरू नहीं हुई है। ओके, आई गॉट इट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मैं ये बता रही थी कि इससे पहले जो आपके सामने जिक्र चल रहा था वो ये था कि अल्लाह ताला ने बताया कि ईसा मरियम के बेटे हैं और अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के कलमा हैं और उसके रूह हैं, और अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आओ और तस्लीस का अक़ीदा भी गलत है। इन तमाम चीज़ों से बाज आओ, तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है, और अल्लाह ही को माबूद बनाओ, और अल्लाह ताला हर तरह के शिर्क से पाक है, और अल्लाह ही की हुकूमत है आसमान और ज़मीन में, और अल्लाह ताला ही वली है। ठीक है, ये तमाम पॉइंट हमारे सामने कल आ गए थे। अब आज जो हमारे सामने अल्लाह ताला मज़ीद इसके ताल्लुक से बता रहा है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बात से बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, अपने आप को कमतर महसूस नहीं करते हैं, या अपने लिए ये कोई नदामत की बात महसूस नहीं करते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं, कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है,
تو دیکھیے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم اللہ کا بندہ کہیں گے تو شاید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، شاید کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حق کم کر دیا یا ان کی حق تلفی کر دی یا ان کا حق گھٹا دیا۔ اس طرح کے لوگوں کی سوچ ہے کہ جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں گے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اور اللہ کا بیٹا سمجھنا شاید یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے شاید خوش ہوں گے، ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار نہیں ہے، اللہ کا بندہ کہلوانے میں، اللہ کا بندہ سمجھنے میں انہیں کوئی عار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ حقیقت تو یہی ہے، سچائی تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے نا، اللہ کے بندے ہیں وہ بھی، اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے وہ بھی۔ تو اب یہ ایک پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا، اور اگر ہم آگے دیکھیں کہ ولل ملائکۃ المقرب، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اس بات سے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہیں یا اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو جو فرشتے یعنی جن کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جنہیں مقرب کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے، انہیں بھی اس بات سے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا فرشتوں کے تعلق سے، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم فرشتوں کو اللہ کا بندہ سمجھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی، فرشتوں کی حق تلفی ہو جائے گی یا فرشتوں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی نا، یہ ایک ان کا عقیدہ تھا یہ۔ تو یہاں پر ان تمام باطل عقائد اور باطل نظریات کی تردید کی جا رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے، اور اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جب اس بات سے کوئی عار نہیں ہے، جب وہ اس بات کو کوئی کم نہیں سمجھتے ہیں، یعنی کسی بات انہیں اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کسی بھی قسم کی، تو آخر تم لوگوں کو کیا پریشانی ہے، یا تم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، فرشتوں کو اور نبیوں کو یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں اللہ کا بندہ نہ سمجھیں، ہم انہیں کوئی اونچا مقام دیں۔ اب اس میں اب ہم سب کے لیے سبق کا ایک اور پوائنٹ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے ہمارے لیے کہ جب مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جنہیں اتنا اونچا مقام حاصل ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے میں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہے ہیں، کوئی عار محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سب کے لیے سبق کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں بھی، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر ہی زندگی گزاریں، اور اس بات سے ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یعنی اصل میں اگر دیکھا جائے اس آیت کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ انسان کے اندر سے تکبر اور گھمنڈ کو ختم کرنا چاہتی ہے، دور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آگے کہا بھی جا رہا ہے کہ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا کرے گا، عار محسوس کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو اس میں ہمارے سبق کا پوائنٹ جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یا ہمارے دل میں کبھی اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا، آج جو ہمارے اندر جو سب سے زیادہ جو احساس کمتری جس چیز کا پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہوئے یا مسلمان کی جو پہچان ہے، مسلمان کی جو علامت ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دقیانوس سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے
अजीब से लगते हैं मुसलमान, अगर हमने अपना आप को मुसलमान जाहिर किया लोगों के सामने तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। तो आज हम में से बहुत सारे मुसलमान लोग अपने आप को मुसलमान समझते हुए भी शर्मा रहे हैं, मुसलमान कहते हुए भी शर्मा रहे हैं। मुसलमानों जैसी वज़ाफ़त, मुसलमानों जैसा हुलिया, मुसलमानों जैसे आमाल करते हुए हम लोगों के सामने शर्माते हैं। यानी हम कैसे लोगों के सामने पर्दा करें, हम पर्दा करेंगे या बुर्का ओढ़ेंगे तो फिर तो हम बड़ी अजीब से मखलूक लगेंगे और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम बिल्कुल दकियानूस टाइप के लगेंगे, बिल्कुल ना पर्दा करके। या नमाज पढ़ते हुए किसी के सामने नमाज पढ़ेंगे तो लोग हमें दीनदार समझेंगे या हमें मुल्तानी समझेंगे या हमें नेक समझेंगे। इस बात से शर्मिंदगी महसूस करना कि लोगों के सामने हम नमाज न पढ़ें। आज हम में से बहुत से लोगों की ये कैफियत होती है कि हम बहुत सारी दीन के काम करते हुए लोगों के सामने दीन के काम करते हुए शर्माते हैं। लोगों के सामने आज हम क्या है, इस्लाम के बहुत सारे काम करते हुए शर्माते हैं, इस्लाम के तकाजे पूरे करते हुए, इस्लाम के मुतालबात पूरे करते हुए हम क्या करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कुछ लोग इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम क्या करें कि दावत और तबलीग का काम करें, भला हमारी शान इतनी ऊंची, हमारा मकाम इतना ऊंचा, हमारी पोस्ट इतनी ऊंची। मान लीजिए हम में से कोई ऊंची पोस्ट पर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, कुछ भी है। अगर उसे अब उसे क्या लग रहा है, अब लोगों के सामने उसे नमाज पढ़ते हुए शर्म आ रही है कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मैं तो इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, कैसे मैं रोजे रखूं या कैसे मैं क्या करूं, दिन का कोई काम करूं, दावत का काम, कोई तबलीग का काम, या कुरान कैसे पढ़ूं लोगों के सामने, है ना। तो इस बात से शर्मिंदगी महसूस करना ये क्या है, इंतहाई कहना चाहिए इस चीज से इस आयत में मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करते हुए हमें शर्म महसूस, कि हम लोगों के सामने क्या है सलाम करते हुए शर्म महसूस करें कि कैसे हम सलाम करें, इससे लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम मुसलमान। अक्सर क्या होता है कि घर में रहते हुए तो इतना नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस बात से कि हम मुसलमान हैं। या मिसाल के तौर पर कोई हमें से कोई सफर कर रहा है, सफर करते हुए उसे गैर मुस्लिमों के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कैसे इनके सामने नमाज पढ़ें, कैसे इनके सामने सलाम करें, कैसे हम इनके सामने हम जो ये बुर्का पहने हुए हैं तो बड़े हम इनके सामने क्या लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं। तो अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस तरह की सिचुएशन ज्यादा हो जाती है कि वहां पर लड़कियां और लड़के अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हुए भी शर्माते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी शर्माते हैं, और मुसलमानों जैसे कपड़े पहनते हुए, मुसलमानों जैसे ड्रेसअप होते हुए भी वो लोग वहां पर शर्माते हैं कि हम लोगों को मालूम ना हो जाए कि हम मुसलमान हैं। सलाम करते हुए शर्माते हैं, नमाजें पढ़ते हुए शर्माते हैं, कॉलेज में नमाज कैसे पढ़ें, यूनिवर्सिटी में नमाज कैसे पढ़ें, तो इससे क्या होगा कि बड़े हम क्या लगेंगे, बड़ी शर्म महसूस हो रही है। तो अल्लाह की इबादत करते हुए शर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नमाज का मामला हो या रोजे का मामला हो या फिर किसी भी चीज का हो, कुरान पढ़ने का मामला हो कि हम कुरान पढ़ते हुए शर्माए, या मिसाल के तौर पर कि अगर हम क्या है, हम बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब हम में से बहुत से लोग शर्माते हैं कि अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे, तो हमारे पढ़ने की उम्र तो निकल चुकी है, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चों के पढ़ने की उम्र है ना। इस बात से भी लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। या तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अब कैसे पढ़े, अब तो बड़े हो गए। या अगर पढ़ लिया है और सही नहीं है या और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे पढ़े इतने बड़े होकर। तो यहाँ मना किया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत से कोई शर्म नहीं आना चाहिए। अल्लाह की इबादत करते हुए शर्माना कैसा, और कैसे महसूस करना, शर्मिंदगी कैसे महसूस करना, नदामत कैसे महसूस करना, तो कभी भी शायद मना किया जाए। इसमें मतलब ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए, अल्लाह ताला ने मिसाल देकर समझाया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल हैं, जिनका मकाम इतना ऊंचा है कि जो अल्लाह के कलमा कुल से पैदा हुए हैं, जो अल्लाह ताला की रूह, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रूह फूकी है ना, जब उन्हें इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उन्होंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा। जब फरिश्ते जिनका इतना ऊंचा मकाम है, जो आसमानों पर रहते हैं, बुलंदियों पर रहते हैं, ऊंचाइयों पर रहते हैं, अल्लाह के करीबी हैं, जब वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, तो आखिर इंसान जो मिट्टी से पैदा हुआ है, जो एक पानी की हकीर बूंद से पैदा हुआ है, जो क्या है कि इंतहाई कमतर जिसको कहना चाहिए, एक इंतहाई छोटी सी मखलूक है ना, तो आखिर उससे क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही है अल्लाह की इबादत करते हुए। तो ये तो क्या हो गया, बयस्तकबीर, ये तो तकब्बुर हो गया, घमंड हो गया, ये तो गुरूर हो गया, तो अपने आप को बड़ा समझना हो गया कि हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मिस्किन लोग, बहुत गरीब लोग, गुलाम और औरतें, बहुत कमज़ोर किस्म के लोग ईमान लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त के जो सरदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे मक्का के, वो लोग क्या कहते थे कि इन्हें हटा दो अपनी मजलिसों से,
جب یہ ہٹ جائیں گے تو ہم آپ کے قریب آئیں گے، ہم ان کے قریب بھی نہیں بیٹھیں گے، یہ بہت کم تر لوگ ہیں، بہت انتہائی حقیر لوگ ہیں، یا غلام لوگوں کے برابر میں ہم کیسے بیٹھے ہے نا، یہ ہماری تو شان گھٹ جائے گی کہ ہم اتنے نیچ اور اتنے کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ اس طرح کے لوگوں کا کام ہے نا، چھوٹے لوگوں کا، نیچ قسم کے لوگوں کا ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے کہ ہم ایسے محفلوں میں سے مجلسوں میں کیوں شریک ہوں جہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور پھر تکبر کرنا کہ ہم وہاں جا کر نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اگر ہمیں پڑھنا ہے تو پہلے کیا ہے انہیں ہٹانا ہوگا، تب ہم کیا ہوں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی یہ بات کی تھی کہ تمہارے پر تو بہت کمتر لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، حقیر اور کمزور لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو اگر ہم بھی ایمان لے کر آ جائیں گے پھر تو ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، ہمیں ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری شان گھٹے۔ ہاں تو بالکل یہی سین کیا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا نا، تو بالکل آج بھی ہمیں سوچ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اندر پائے جاتے ہو کہ ہم ایسے لوگ سے اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے، دعوت کا، دین کا نا، ہمارا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت مالدار قسم کے لوگ ہیں نا، بہت اونچے گھرانے کے لوگ، اگر وہ کیا رہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں، اور وہ لوگ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرما رہے ہیں، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، بڑے گھر کے لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، یا کوئی بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو اس چیز سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو آگے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ تمام انسانوں کو جمع اللہ کے پاس ہونا ہے، ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ اونچے لوگ ہوں یا نیچے لوگ ہوں، چاہے وہ بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے لوگ ہوں۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے، آخری خطبہ دیا تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ذات برادری کی بنا پر کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ذات اونچی ہے، یہ برادری اونچی ہے اور یہ نیچی ہے، کسی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسروں کو نیچا سمجھنا، یا جیسے دولت کی بنا پر کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، تو اس چیز کو اللہ کا رسول ختم کر کے کہتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو ختم کر کے جا رہا ہوں، اونچ نیچ کو ختم کر کے جا رہا ہوں، اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت اگر کسی کو حاصل ہو تو وہ کس بنا پر حاصل ہے، تقویٰ کی بنا پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے وہ ہمارے اندر سے تکبر کو ختم کرتی ہے، اور ہمارے اندر کیا چیز آنا چاہیے، عاجزی اور انکساری آنا چاہیے، کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر رہیں، اور اللہ تعالیٰ عبادت کی میننگ یہی ہوتے ہیں نا، عبادت کی میننگ کیا ہوتے ہیں، التذلل والتواضع، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، سرنڈر کر دینا ہے نا، اپنے آپ کو بالکل گھٹنے ٹیک دینا اللہ تعالیٰ کے آگے، اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ تو عبادت ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، اور تکبر اور گھمنڈ ہمارے اندر سے دور کرتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا جو سبق ہے ہم سب کے لیے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی بھی دین کا کام کرتے ہوئے کبھی نہیں شرمائیں، اور کچھ، اور یہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹی سی نیکی جو ہم کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے شرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں میں آپ کو، کہ جب یہ طائف کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس موقع پر جب اللہ کے رسول نے ایک باغ میں پناہ لی تھی، جس وقت لوگ اللہ کے رسول کو مار رہے تھے، لہو لہان کر رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے باغ میں پناہ لی تھی، تو وہاں پر جا کر جب اس باغ کا جو ایک مالک کا جو غلام تھا، اس نے اللہ کے رسول نے جب انگور لا کر پیش کیے تھے اس باغ کے، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، بسم اللہ پڑھ کر انگور کھایا۔ تو یہ عمل جو آپ نے بسم اللہ پڑھا، تو اسے بڑی حیرت ہوئی اس غلام کو، اس نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا، یہ کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے تعارف کرایا کہ یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، اور یہ مطلب بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ، میں اللہ کا رسول ہوں، پورا تعارف کرایا اپنا دین کا۔ تو وہ بہت متاثر ہوا اور وہ اسلام لے آیا تھا، اس نے ایمان قبول کر دیا تھا۔ تو سوچیے ذرا کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ کیا چیز بنی، ایک چھوٹا سا عمل کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور کھایا، اور یہ عمل اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔
तो कभी भी कोई भी छोटा अमल करते हुए हम शर्माएं नहीं, शर्मिंदगी महसूस ना करें। लोगों के सामने कोई काम करते हुए हो सकता है कि हमारा कुछ छोटा सा अमल किसी दूसरे की हिदायत का जरिया बन जाए, ठीक है। तो ये जी, कुछ कहना है किसी को क्या? तो आप लोग अपने माइक बंद रखा कीजिए। रजिया, शाहीन बाजी, तस्मीर, संगीत, आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए। अगर कोई बात मालूम करना हो तो कर सकते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही व अम्मल लज़ीना इस्तनकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा व ला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, तो अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा अज्र देगा और उन्हें मजीद अपने फजल से नवाजेगा। और रहे वो लोग जो आर महसूस करते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और नहीं वो पाएंगे अपने लिए अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई वली और ना कोई मददगार। अब इसके मुकाबले में देखिए कि करने का काम क्या है, जरूरत किस बात की है। अल्लाह की इबादत से शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय, अपने आप को बड़ा समझने के बजाय, जरूरत इस बात की है कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू, सही मानों में ईमान लेकर आए, हकीकी ईमान लेकर आए, शऊरी ईमान लेकर आए, ईमान का हक अदा करें, अच्छे तरीके से सोच समझ कर ईमान लेकर आए, दिल की गहराइयों के साथ। जो होता है ना कि इक़रार बिल लिसानी व तस्दीक बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक करते हुए और ज़बान से इक़रार करते हुए, और अमल हमारा क्या करे उसका सबूत दे। कहा जा रहा है ना कि वअमिलुस स्वालिहात, नेक अमाल से हम क्या करें, अपने ईमान का सबूत दें। इसी की तशरीह आपके सामने 12 आ चुकी है कि ईमान लाने के बाद अमल स्वालिह करना जरूरी है, वरना सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा जब तक कि अमल स्वालिहा, हमारे आमाल स्वालिहा, हमारे ईमान का सबूत जब तक ना दे। तो हमें नेक अमाल के जरिए अपने ईमान का सबूत फराहम करना है कि हम मोमिन हैं। सिर्फ नाम रख लेना मुसलमानों जैसे, सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझ लेना और मुसलमान कहने से मसला हल होने वाला नहीं है, है ना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वअमिलुस स्वालिहात, आमाल स्वालिहा जरूर करना है। और अगर हम नेक अमाल करते हैं तो फिर पूरे ईमान के साथ करें, पूरे यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला के लिए वो काम करें, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारे अमाल देख रहा है, अल्लाह ताला के इल्म में है हमारे अमल। तो ईमान और अमल स्वालिहा ये क्या है, ये हमारे कहना चाहिए बुनियादी जरूरत कह लीजिए इसे, कि ये हमारी बुनियाद है। किस चीज की? कामयाबी की कुंजी, जन्नत की कुंजी, है ना? कि ईमान लाएं और ईमान लाने के बाद क्या करें, नेक अमल करें। अब बदले में क्या मिलेगा, फ़यवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, पूरा पूरा ऐसे लोगों को बदला दिया जाएगा, उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनके सवाब में किसी तरीके से कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला आदिल और मुंसिफ है। अल्लाह ताला किसी का अजर घटाता नहीं है, कम करके नहीं देता है। अल्लाह ताला बहुत फराख दिल है, बहुत कुशादा दिल है ना। ये इंसानों की तरह मामला नहीं है, अल्लाह ताला के अंदर कोई तंगी नहीं पाई जाती है। वो पूरा पूरा अजर देगा, पूरा पूरा बदला देगा ना। जैसे आमाल होंगे वैसे ही क्या मिलेगी, उजरत। और बल्कि आगे क्या है कि वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला की शान तो इतनी ऊंची है कि वो अजर से बढ़कर नवाजेगा। अल्लाह ताला अपने फजल से नवाजेगा। फजल किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा चीज, जायद चीज। तो जितनी हमारी नेकियां होंगी भी नहीं, जितने हमारे आमाल भी नहीं होंगे, उससे बढ़कर क्या है, अजर दिया जाएगा। उससे बढ़कर क्या है, सवाब से नवाजा जाएगा। ये है अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला का मकाम। इससे हमें अल्लाह ताला की अजमत का अंदाजा होता है, उसकी रहमत का अंदाजा होता है, उसकी मोहब्बत और शफकत का अंदाजा होता है। और ये बात हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह ताला सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और अल्लाह ताला का फजल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये बात तो आपके सामने कई मरतबा आ चुकी है कि इंसान कितने ही अमल कर ले, है ना, कितनी ही अच्छाइयाँ कर ले, लेकिन जन्नत जो है वो उसके आमाल से बढ़कर है। जन्नत का मिल जाना, जन्नत की नेमतों का मिल जाना, ये इंसान की सोचों से भी बढ़कर है, उसके तसव्वुरात से बढ़कर है और उसके आमाल से भी बढ़कर है।
हमारे अमाल वाकई इस काबिल नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएं। जन्नत का मिल जाना सरासर अल्लाह ताला का एहसान होगा, उसका फजल होगा, उसकी रहमत होगी। तो इसलिए अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहिए? अल्लाह ताला तो हमें अपने फजल से नवाज, हम इस काबिल नहीं है, हमारे अमाल इस काबिल नहीं है, हमारे पास नेकियां नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला तू बहुत फजल फरमाने वाला है, तो अपने फजल से हमें क्या कर नवाज, अपने फजल से तो हमें अता फरमा। अल्लाह ताला से कुरान करीम में ये बात कही गई ना कि अल्लाह ताला से उसका फजल मांगा करो। तो हम जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला से उसके फजल का मुतालबा किया करें, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगा करें। अल्लाह ताला तू हमें अपने फजल से नवाज, दुनिया में भी और आखिरत में। ठीक है। वअम्मल लज़ीना इस्तनकफू वस्तकबरू फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा। जो लोग अल्लाह ताला की इबादत से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अब उसे आयत को फिर दोहराया जा रहा है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं, किस बात से? अल्लाह ताला की इबादत से, कि अल्लाह ताला की इबादत करते हुए शर्म आती है। वस्तकबरू, और अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम इतने बड़े हैं, हमारा मकाम इतना ऊंचा। कुछ भी हो सकता है कि किसी इंसान के पास क्या होती है, दौलत ज्यादा होती है, किसी के पास शोहरत ज्यादा होती है, किसी के पास हुस्न होता है, किसी के पास सलाहियत ज्यादा है, किसी के पास इल्म ज्यादा है, किसी भी चीज का तकब्बुर हो सकता है। बस तकब्बुर, किसी भी चीज में वो अपने आप को बड़ा समझ सकता है। तो किसी भी किस्म का तकब्बुर के ताल्लुक से तो हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं ना कि अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमें अपने अंदर जो चीज निकालना है वो तकब्बुर निकालना है, अपना घमंड, अपना गुरूर, अपना किब्र, ये हम सबको अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है। क्योंकि तकब्बुर क्या है? ये शैतानी अमल है। शैतान ने क्या किया था? तकब्बुर तो किया था कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुआ है, मैं इसे किन सजदा करूँ, मैं तो ऊपर की तरफ जाता हूँ, मिट्टी तो क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, मैं बुलंद हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। यही चीज तो शैतान के अंदर आई थी। तो इसीलिए शैतान क्या है, अल्लाह ताला के दरबार से निकाला गया, वो जन्नत जहन्नम बसीद होने वाला है वो। तो अब यही तकब्बुर अगर हमारे अंदर पाया जाता है कि हम कहें कि मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, किसी भी मामले में हम सोचे ड्रेस के मामले में कि मेरी ड्रेस इससे अच्छी है, या मेरा घर इससे अच्छा है, या मेरा इल्म इससे अच्छा है, या कोई भी चीज हो सकती है तकब्बुर की, है ना, किसी भी चीज के ताल्लुक से कि मैं इससे अच्छा हूँ। नेकियों का भी तकब्बुर हो सकता है ना, दीन का भी तकब्बुर हो सकता है, दुनिया का भी तकब्बुर हो सकता है। किसी भी तरीके से तकब्बुर ये इंतहाई एक ऐसी चीज है जो वाकई इंसान के अमाल को बर्बाद कर देती है, अमाल को अकारत कर देती है। तो इसलिए जहां तक भी हो सके तकब्बुर से हम सबको बचने की जरूरत है, तकब्बुर से इज्तिनाब करने की, एहतराज करने की जरूरत है। और अपने अंदर जहां तक भी हो सके हम अपने आप को क्या समझें, अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा समझें, आजिज़ और दरमांदा बंदा, कमजोर बंदा समझें, अल्लाह ताला के आगे झुककर जिंदगी गुजारें। अल्लाह का रसूल की सीरत को हम पढ़ा करें कि अल्लाह का रसूल के अंदर कितना ज्यादा क्या पाया जाता था, इज्जत और इंकिसारी पाई जाती थी, कितने ज्यादा अल्लाह के रसूल के अंदर आजिज़ और इंकिसारी। चल रहे हैं तो झुककर चल रहे हैं, गोया के नीचे की तरफ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं तो तमाम लोगों के बीच में बैठ रहे हैं कि लोगों को आकर मालूम करना पड़ता था कि मोहम्मद कौन है इनमें से, ये नहीं कि अपने लिए कोई ऊंची जगह बना के काम कर रहे हैं। अगर तमाम लोग के मस्जिद की तामीर हो रही है तो साथ साथ तामीर फरमा रहे हैं, अगर खंदक खोदी जा रही है तो साथ साथ खंदक खोद रहे हैं, अगर जंग हो रही है तो साथ साथ क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा कि मैं तो अल्लाह का रसूल है, मैं क्यों काम करूँ, कभी नहीं सोचा। तो ये चीज क्या होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए, किसी भी चीज के ताल्लुक से हमारे अंदर तकब्बुर ना आए, बल्कि आज तो इंतसारे की जिंदगी गुजारें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सामने रखें कि उन्होंने कैसे इंतसारे की जिंदगी गुजारी। और वो मिसाल भी आपके सामने कई बार आ चुकी है ना कि मक्का को फतह भी कर रहे हैं तो कितनी आजिज़ और इंतसारे के साथ गोया सजदे में गिरे हुए हैं। इतनी बड़ी खुशी का मकाम है ना, इतना बड़ा फख्र का मकाम था ये फतेह मक्का का मौका, और उस मौके पर भी क्या है, तवाज़ु और इंतसारी। तो ये हम सबको अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, तवाज़ु और इंकिसारी, और अपने अंदर से तकब्बुर और घमंड को दूर करना है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि तकब्बुर या गुरूर या घमंड या अपने आप को बड़ा समझना और अल्लाह की इबादत से क्या करना, जी चुराना, भागना, या क्या करना कि ये सोचना कि इबादत करते हुए हम क्या लगेंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, है ना। ये चीज अगर हमारे अंदर आ रही है तो इस चीज को अपने अंदर से खत्म करने की जरूरत है। कभी भी हम एहसास कमतरी का शिकार ना हुआ करें, ठीक है, कभी भी कि हम अपने आप को, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपके सामने मिसाल भी दी कि हम कोई भी अमल करें,
दीन का, तो कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। मुसलमान अपने आप को समझते हुए या कोई भी अलामत इख्तियार करते हुए इस्लाम, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। दर्दनाक अजाब पता ही है हम सबको कि जहन्नम का अजाब भी क्या है, दर्दनाक अजाब है। देखिए इस ताल्लुक से हमेशा याद रखना कि कभी हमारे जहन में ये ना आए कि इस जहन्नम में सिर्फ काफिर ही जाएंगे, सिर्फ काफिरों के लिए जहन्नम तैयार की गई है। कोई भी अमल हो सकता है कि कोई भी अमल इंसान की क्या बन जाए, हलाकत का जरिया बन जाए, कोई भी अमल इंसान के निजात का जरिया बन सकता है। हदीस में यही तो कहा गया है कि किसी भी अमल को छोटा मत समझो, और वो नेकी का अमल हो या गुनाह हो। कोई भी छोटा सा नेक अमल इंसान के जन्नत में जाने का जरिया बन सकता है, और कोई भी छोटा सा गुनाह इंसान को जहन्नम में जाने का जरिया बन सकता है। इसलिए किसी भी अमल को छोटा ना समझे, डरना चाहिए इंसान को, है ना। छोटे छोटे गुनाह, यानी ये सोच कर नहीं है कि छोटा सा गुनाह है कर लेते हैं, क्या हर्ज है, माफी मांग लेंगे अल्लाह ताला से। कुछ नहीं पता कि कौन सा अमल हमारी हलाकत और बर्बादी का जरिया बन जाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि किसी भी नेकी को छोटा समझकर तर्क ना करोगे तो छोटी सी नेकी है, क्या फायदा होगा। छोटी छोटी नेकियों को हदीस में सदका बताया गया है ना, जैसे रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना सदका है, किसी को देखकर मुस्कुरा देना सदका है ना। ये छोटे छोटे अमल जो है ये इंसान की निजात का जरिया बन सकता है। और इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि किसी भी गुनाह को छोटा मत समझो। जैसे झूठ है, झूठ को इंसान इंतहाई छोटा अमल समझते हैं कि छोटा सा अमल है ना, क्या हो जाएगा अगर झूठ बोल देंगे तो। और हालांकि झूठ के ताल्लुक से हदीस में क्या आता है कि झूठ इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाता है, गुमराही इंसान को क्या है, जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। और जो इंसान झूठ बोलता रहता है तो फिर वो झूठों में शुमार किया जाता है, झूठों में लिखा जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे कोई भी अमल को हम छोटा ना समझते। कुरान करीम में आया है ना कि अगर जर्रा बराबर नेकी भी होगी तो वो सामने लाई जाएगी, और अगर जर्रा बराबर शर भी होगा तो वो भी सामने लाया जाएगा, वो भी इंसान देख लेगा। ठीक है, चलिए बहरहाल, वला यजिदूना लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और ऐसे लोग क्या होंगे, अल्लाह ताला के मुकाबले में ना कोई वली पाएंगे और ना कोई मददगार। यानी उस अज़ाब अलीम का नक्शा खींचा जा रहा है, जहन्नम के अजाब का नक्शा खींचा जा रहा है कि जहन्नम का अजाब ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बचाने आ जाएगा, कोई छुड़ाने आ जाएगा, कोई सिफारिश कर देगा या कोई छुड़ा लेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया की तरह उसका मामला नहीं है कि दुनिया में अगर किसी को सजा मिलती है या जेल मिलती है तो फिर क्या है कि रिश्तेदार पहुंच जाते हैं छुड़ाने, माँ बाप छुड़ाने पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोग छुड़ाने पहुंच जाते हैं। तो वहां का मामला ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में वहां पर वो किसी को अपना वली नहीं पाएंगे। एक तो मतलब इसमें इस चीज की भी तरदीद की जा रही है कि अगर किसी इंसान के जहन में ये है कि हम जिनको मतलब हम औलिया समझते हैं कि अल्लाह ताला के वली हैं, या हमारी सिफारिश कर देंगे, या हमें बचा लेंगे, या हमें छुड़ा लेंगे, हम इनके दामन में हमने इनके पनाह ले ली है, या इनके लिए हमने अपनी जिंदगी नाम कर दी है, तो यहाँ पर मना किया जा रहा है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई वली भी काम नहीं आएगा और ना कोई मददगार, है ना। ये बात तो कुरान करीम में कई बार आ चुकी है ना कि ना माँ बाप काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना औलाद काम आएगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना दौलत काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा वहां पर। सिर्फ इंसान के आमाल, इंसान की नेकियां ही इंसान को क्या कर सकती हैं, निजात दिला सकती हैं। ठीक है, इसलिए तो हम सबको किस बात की जरूरत है कि हम आमाल पर तवज्जो दें, अपने अपने अमल को सही और दुरुस्त करें, अपनी नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी नेकियों को सही करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे हैं, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ चुकी है और हमने नाज़िल किया तुम्हारी तरफ खुला हुआ नूर, खुली हुई रोशनी। अब फिर इसमें क्या चीज सामने आ रही है, या अय्युहन नास, ऐ तमाम इंसानों। ये खिताब कुरान करीम में बार बार आता रहता है, बार बार कुरान करीम क्या करता है, तमाम बनी नौ इंसान को मुखातब करता है, तमाम इंसानों को मुखातब करता है कि ऐ तमाम इंसानों, चाहे तुम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मोमिन हो या काफिर हो, फरमाबरदार हो या नाफरमान हो, नेक हो या क्या हो, गुनहगार हो, कोई भी हो, या अय्युहल इंसानों, ऐ तमाम इंसानों, तुम मर्द हो या औरत हो, गुलाम हो या आजाद हो, बूढ़े हो या क्या हो, जवान हो, कोई भी हो, सबके सब क्या है, मुखातब है कुरान करीम का। तो जो सबक का पॉइंट है वो हमारे सामने कई बार आ चुका है कि कुरान सिर्फ हमारी ही किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मुसलमानों की ही किताब नहीं है, कुरान क्या है, तमाम इंसानों के लिए आया है।
तमाम इंसानों तक हमें इसके पैगाम को पहुंचाना है। आगे कहा जा रहा है कि क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास बुरहान तुम्हारे रब की तरफ से। बुरहान की मीनिंग क्या होते हैं? बुरहान किसे कहते हैं? दलील को कहते हैं कि दलील आ चुकी है तुम्हारे पास, सबूत आ चुका है तुम्हारे पास। दलील और सबूत किस चीज का? देखिए कुरान जो है एक मुदल्लल कलाम, कुरान जो बात करता है, कुरान की बातों में कह लीजिए या कुरान की आयात में कह लीजिए या अल्लाह ताला के कलाम में कह लीजिए कि एक वजन पाया जाता है। ये बात आपके सामने कई बार आ चुकी है कि कुरान की आयत जो है अपने अंदर एक ताकत रखती हैं, एक कुव्वत रखती हैं, एक सहर रखती हैं, एक असर रखती हैं। तो कुरान करीम की जो आयत है वो मुदल्लल है। अल्लाह ताला, देखिए आपने देखा होगा, अंदाजा क्या होगा कुरान करीम में कि अल्लाह ताला जो बात भी कहता है ना, सिर्फ कहता ही नहीं है बल्कि दलाइल की रोशनी में बात करता है। कुरान करीम, कुरान करीम में इतने दलाइल दिए गए हैं कि बाकी अक्ल हैरान रह जाती है कि ऐसा लगता है कोई चीज छोड़ी ही नहीं है किसी चीज को। सूरज को दलील बनाया गया, चांद को दलील बनाया गया, आसमान को दलील, जमीन को दलील, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, इंसानों को, फरिश्तों को, जिन्नों को, पैगम्बरों को, सितारों को, है ना, फल और फूल। आप अगर अम्मा पारा अगर हम पढ़ते हैं तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीज, है ना, कि चाश्त की कसम खाई जा रही है और रात की कसम खाई जा रही है और सुबह की कसम खाई जा रही है। कोई चीज ऐसा लगता है कि छोड़ी ही नहीं है कुरान करीम में, है ना। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, जिसको हम कहते हैं ना कि जर्रे से लेकर आफताब तक, हर चीज के वो कुरान करीम में दलील बनाकर कहा गया है कि कायनात की हर चीज दलील दे रही है। किस चीज की? अल्लाह ताला के वजूद की, अल्लाह ताला की रहमत की, उसकी ताकत की, उसकी कुव्वत की, उसकी रुबूबियत की, उसकी उलूहियत की, उसकी मोहब्बत की, हर चीज दलील दे रही है। तो ये कुरान करीम, याद रखिए, एक मुदल्लल कलाम है। मुदल्लल किसे कहते हैं? कि इसमें दलाइल दिए गए हैं, इसमें सबूत फराहम किए गए हैं अल्लाह ताला के। जो मैंने मिसालें दी आपके सामने, अल्लाह ताला के वजूद की, अल्लाह ताला तौहीद की दलाइल दिए गए हैं इसमें। तो देखिए, जब कुरान एक दलील है, कुरान एक सबूत है, कुरान एक मुदल्लल कलाम है, तो जरूरत किस बात की है ना कि हम अगर किसी से बात करें ना, किसी से, चाहे हम बहस व मुबाहिसा हो या हमारा टॉक हो, तकरीर हो, दर्स हो, कुछ भी हो, तो दलाइल हमें किस चीज से देना चाहिए? कुरान करीम से देना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम एक दलील है। और दलील भी कैसी है ना? आला दलील, ऊंची दलील ना, सबसे बढ़कर दलीलें अगर दी गई हैं तो कुरान करीम। इंसानों की दलीलों में भी वो ताकत नहीं होती है, वो कुव्वत नहीं होती है। इंसान की सोच में, इंसान के कलाम में, इंसान की बात में, उसके नजरियात में वो ताकत नहीं है जो कुरान करीम के आयात के जो दलाइल जो होते हैं उसके अंदर जो ताकत और कुव्वत होती है। तो वाकई ऐसा लगता है कि कुरान करीम के आयात के सामने इंसान लाजवाब होकर रह गया। इंसान के पास कोई जवाब ही बाकी नहीं रहता है, कोई जवाब ही बाकी नहीं रहता है ना, कोई दलील बाकी नहीं रहती है कि कुरान करीम की आयत के सामने क्या दलील दी जाए, क्या जवाब पेश किया जाए, क्या बात कही जाए। कुरान इंसानों को लाजवाब कर देने वाला कलाम नहीं है ना। कुरान अपने अंदर क्या रखता है? बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी कुव्वत, बहुत बड़ा सबूत। तो कभी भी हम किसी से बात करें तो कुरान की रोशनी में बात करें, कुरान की आयत। मिसाल के तौर पर अगर हम कुरान ही की तशरीह कर रहे हैं, कुरान ही समझा रहे हैं लोगों को, तो कुरान की आयत की तशरीह कुरान की आयत ही के जरिए करें कि देखिए ये बात इससे पहले भी कही गई है, ये बात इसके बाद भी आने वाली है। कुरान की आयत से दलील पेश किया करें। हदीस अगर हम समझा रहे हैं तो कुरान की आयत को कोट करें, उसमें कि कुरान में भी ये बात कही गई है। उससे क्या हो जाती है? हमारी बात मजबूत हो जाती है। या हम चीज समझा रहे हैं तो हम क्या करें? कुरान की रोशनी में समझाएं, कुरान के दलाइल देकर समझाएं। तो ये कुरान की बात जब हम बीच में लेकर आते हैं ना, तो उससे हमारी बात में वजन पैदा हो जाता है, उससे हमारी बात मुदल्लल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर के लोग तकरीरें करते हैं तो उसमें क्या है, कुछ किस्से सुनाते हैं, कुछ कहानियां सुनाते हैं, कुछ अपनी तरफ से बातें, और उससे क्या होती है, उनकी बात में चीखते चिल्लाते तो बहुत है, वो अपनी बात में वजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस चीज के जरिए? शायद समझ लिया कि जितना हम चीखेंगे, जितना चिल्लाएंगे, शायद हमारी बात उतनी ही वजनी हो जाएगी, उतनी ही भारी हो जाएगी। तो चीखने चिल्लाने से बात तो क्या होती है? वजनी नहीं होती है। बातों में अगर वजन पैदा करना है तो क्या करें? कुरान करीम की आयत को हम क्या करें? कोट करें, कुरान करीम की आयत के जरिए बात को मुदल्लल करें, तो उससे बात में क्या हो जाता है? बहुत असर पैदा होता है। तो इसी अल्लाह ताला कह रहा है कि या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ तमाम इंसानों, तुम्हारे पास दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से।
अब इस दलील के बाद शायद किसी दलील की गुंजाइश भी नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी दलील हमारे पास आ चुकी है कुरान करीम की शक्ल में, कुरान करीम की रोशनी में। तो कुरान ये क्या है? बुरहान है, ठीक है। और कहाँ से आया है? किसी इंसान की तरफ से नहीं, किसी जिन की तरफ से नहीं, किसी शैतान की तरफ से नहीं, किसी फरिश्ते की तरफ से नहीं, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार के पास से आया है, तुम्हारे रब के पास से आया है। उसकी रुबूबियत का तकाजा था कि वो कुरान करीम नाज़िल करे। रुबूबियत की मीनिंग कि उसको तुम्हें पालता है, पोसता है, तुम्हें बड़ा कर रहा है, तुम्हारा मुरब्बी है वो, है ना। तो उसकी तरबियत का तकाजा था कि वो क्या करे? तुम्हारी तरबियत करे। तो उसने क्या किया? कुरान नाजिल किया तुम्हारी तरबियत के लिए, ठीक है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला हमारा मुरब्बी है, अल्लाह ताला हमारी तरबियत फरमाता है, अल्लाह ताला हमारा रब है। उसकी रुबूबियत का तकाजा था कि वो कुरान नाजिल करे, उसने नाजिल कर दिया। तो कुरान करीम से हम क्या करें? सबूत फराहम किया करें। कुरान करीम से हम दलाइल, और जब भी हम दलाइल दें तो कुरान करीम ही के दें, ठीक है। वो अनजलना, ये देखिए असल में इसमें एक पॉइंट ये भी है कि लोग ये कहा करते थे ना अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो कोई दलील दीजिए, कोई सबूत दीजिए। सबूत क्या है आपके पास? कोई मुआजिजा दिखाइए। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये है कुरान, ये है दलील, ये कुरान करीम, ये दलील है, ये मुआजिजा है, ये सबूत है कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। तो कुरान करीम को एक दलील के तौर पर भी पेश किया गया था, एक सबूत के तौर पर भी पेश किया गया था। आज भी अगर कोई हमसे क्या करे, कहे, जिससे अगर हम किसी को इस्लाम की दावत दें, तबलीग का काम करें, दावत को कोई हमसे कहे कि सबूत दीजिए, दलील दीजिए, तो कहाँ से दें? कुरान की आयत पेश कर दो तो सामने कि देखो ये है, इसमें कहा गया है, ये है दलील, ठीक है। तो ये कुरान करीम की आयत को हमें क्या करना है? दलील के तौर पर पेश करना है लोगों के सामने, या अय्युहन्नास, इंसानों के सामने पेश करना है। अपनी बात पेश करने की बजाय क्या करें? अल्लाह की बात पेश करें लोगों के सामने, अल्लाह का कलाम पेश करें। और याद रखिए कि कुरान करीम आज भी वही असर रखता है जो आज से 1400 साल पहले असर रखता था, और क़यामत तक इसका असर खत्म नहीं होगा। आज भी कुरान करीम अपने अंदर क्या रखता है? जादू बयानी रखता है, अपने अंदर सहर रखता है। आज भी कुरान करीम के अंदर वही कशिश पाई जाती है। इसके अजायबात खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि क़यामत तक इसके अजायबात खुलकर सामने आते रहेंगे। इसकी तासीर कभी खत्म ही नहीं होती है। कुरान करीम के अंदर जो शीरीनी पाई जाती है, जो मिठास पाई जाती है, जो सहर अंगेजी पाई जाती है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ती ही चली जा रही है। बल्कि हकीकत तो यह है कि कुरान करीम का जितना ज्यादा मुताला किया जा रहा है, जितना ज्यादा पढ़ा जा रहा है, पहले के मुकाबले में जितना आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उतनी ही कुरान से मोहब्बत भी बढ़ रही है, उतनी ही कुरान करीम से लगता है कि क्या हो रहा है कि असर भी बढ़ रहा है, इसकी असर पजीरी बढ़ती चली जा रही है, इसकी जादू बयानी, इसकी मिठास और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ज्यादा आपको खुद लगता होगा कि अब पहले से ज्यादा आपको मजा आ रहा होगा कुरान पढ़ने में। एक तो वो पढ़ना था जो हम पहले पढ़ते थे ना, उसमें भी एक मजा था, उसको पढ़ना भी अच्छा लगता था। लेकिन अब जो मजा है ये क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और ये अब क्या है? बढ़ता रहेगा जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हाँ, कुरान करीम की क्या है? ये बरकत है, ये ना उसकी रहमत है, ये आगे इसका जिक्र भी किया जा रहा है। आगे है कि वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अब एक और अल्लाह ताला कुरान की सिफत पेश कर रहा है, और वो क्या है कि वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, कि हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ खुली हुई रोशनी, खुला हुआ नूर। तो इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि वअंज़लना, का कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कलाम है, अल्लाह ने उतारा है इसे, ये आसमान से उतरा है ये कलाम। इलैकुम, और तुम सब की तरफ आया है, ठीक है, तुम सब की तरफ। यानी कुरान का मुखातब सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं है, कुरान सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए नहीं आया था। कुरान क्या है? तमाम इंसानों के लिए आया है, तुम सब के लिए होता है। जब हम कुरान को पढ़ा करें तो ये सोच कर ना पढ़ें कि ये आयत तो क्या है, मुनाफिकीन इसके मुखातब है, इस आयत के मुखातब तो यहूद व नसारा है, इसके मुखातब तो अहले किताब है, इसके मुखातब तो कुफार मक्का है, मुशरिकीन मक्का है। हम ये सोच कर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। शायद होना क्या चाहिए कि कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज का मुखातब हम अपने आप को समझे कि इसका मुखातब हम हैं। कुरान करीम की एक एक आयत को भी सोचे कि ये आयत क्या है, हमसे कुछ मुतालबात कर रही है, हमसे तकाजे कर रही है, हमसे कह रही है ना। ये कमी तो वाकई हमारे अंदर पाई जाती है, ये सिफत तो वाकई मुझे अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। ये सोचकर हम कुरान करीम पढ़ा करें, ठीक है। अपनी कमियों को ढूंढें, अपने खामियों को तलाश करें, अपने गिरेबान में जाके। ये नहीं कि ये आयत ये चीज तो उसके अंदर है, ये चीज तो उसके अंदर है, नहीं, हमारे अंदर है ये कमी, नहीं, ये सोच कर पढ़ना है। और इसलिए क्या है, अल्लामा इकबाल ने यही तो, अल्लामा इकबाल के वालिद ने यही तो नसीहत की थी अल्लामा इकबाल को
کہ قرآن کو اس طرح پڑھو گویا یہ قرآن تمہارے پر ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے، یہ سوچ کر قرآن پڑھا کرو تو پھر ایک الگ ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ سوچ کر ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے اتر رہا ہے، ہمارے دل پر اتر رہا ہے، اس لیے تو دل پر اتارا گیا ہے یہ قرآن کریم ہے نا، کہ یہ کیا کرتا ہے، دلوں پر حکومت کرتا ہے، یہ دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے نا، دلوں میں اس کا اثر ہوتا ہے، دل کے اندر اترتے چلی جاتی ہے اس کے بعد۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور یہ کیا ہے، نور مبین، کھلی ہوئی روشنی۔ آپ سب جانتی ہی ہیں کہ قرآن اپنے اندر ایک روشنی رکھتا ہے، اور کیسی روشنی رکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد زندگی منور ہو جاتی ہے، زندگی روشن ہو جاتی ہے، راہیں منور ہو جاتی ہیں، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، کامیابی کا راستہ نظر آنے لگتا ہے، اللہ کا راستہ نظر آنے لگتا ہے، کہ دین کا راستہ نظر آنے لگتا ہے، سیدھا راستہ ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیجیے قرآن کریم جیسے کوئی ٹارچ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، یا کوئی روشنی ہمارے ہاتھ میں ہو، جس سے ہم کیا کرتے ہیں، اندھیروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے، راستہ کدھر ہے نا، کوئی کانٹا تو نہیں راستے میں، یا کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے نا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو ہمیں اپنے ہاتھ میں لے کر کیا کرنا ہے، روشنی کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دلوں کو بھی منور کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو بھی منور اور روشن کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی۔ تو قرآن کریم واقعی کیا کر دیتا ہے، دلوں کے اندر بھی اجالا بھر دیتا ہے، اور زندگی میں بھی اس چیز کا اندازہ بھی ہم سب بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوں گے، کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم گویا کہ اندھیرے میں تھے، ہم تاریکیوں میں تھے، ہمیں منزل نظر نہیں آ رہی تھی، نہ اللہ کا راستہ نظر آتا تھا، نہ جنت کا راستہ، نہ کامیابی کا راستہ، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اب بالکل صاف نظر آتا ہے نا، کہ ہاں یہ ہے صحیح راستہ، ہاں یہ ہے جنت کا راستہ، ہاں یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ایک نور عطا کر دیا ہے، ایک روشنی عطا کر دی ہے نا۔ قرآن کریم کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے کہ دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی انشاءاللہ کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ یہ آخرت کو بھی کیا کر دے گا ہمارا قرآن کریم، ہمیں روشنی عطا فرمائے کہ آخرت میں بھی ہے نا، قبر میں بھی روشنی ہے۔ تو قرآن کریم کیا ہے، نور ہے۔ تو واقعی اگر ہم اپنی زندگی میں اجالے بکھیرنا چاہتے ہیں، واقعی اگر ہم اپنی زندگی کو روشن و منور کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کے قریب آنا ہوگا، قرآن کریم سے اپنا رشتہ بحال کرنا ہوگا، استوار کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا۔ تو ہم سب کیا کریں، قرآن کریم سے روشنی حاصل کریں اپنی زندگی۔ جیسے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، نہ جانے کیا کیا، ہر چیز کا ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن اگر ہم کیا کر لیں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کر لیں ہے نا، تو بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، اور نہ جانے کیا کچھ، بہت کچھ دور ہو جائے گا نا۔ اکثر ہم اس بات کو روتے رہتے ہیں نا کہ اس نے تکلیف پہنچا دی، اس نے تکلیف پہنچا دی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، ہم انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں نا۔ تو اب ہم کیا کریں، ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں اور قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں، تو ایک الگ ہی مزہ ہوگا زندگی کا۔ ہم تمام طرح کی الجھنوں سے، ٹینشن، فکر اور نہ جانے کیا کچھ، ان تمام سے ہم نکل کر کیا کریں ہے نا، ایک نورانی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں نا، کہ قرآن کریم کی زندگی ایک نورانی زندگی ہے۔ تو ایک نورانی زندگی میں ہم کیا ہوں گے، قدم رکھیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ نورم مبینہ، مبین کسے کہتے ہیں، کھلی ہوئی، واضح، کلیئر۔ قرآن کریم ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے ہمیں جو بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اس کلیئر اور اس بالکل روشن راستے پر ہمیں آنا ہوگا، کیونکہ دیکھیے مبین کی جو میننگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں، بیان کر دینا، کسی بھی چیز کو کھول دینا، واضح کر دینا، الگ الگ کر دینا۔ قرآن کریم کیا کر دیتا ہے، ہر چیز کو بالکل کلیئر، راستہ واضح، بالکل کہ یہ صحیح، یہ غلط، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ حلال، یہ حق، یہ بات۔ تو اس راستے پر ہمیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیے قرآن کریم سے خود بھی ہم روشنی حاصل کریں، اور ہم دوسروں کی زندگی جو قرآن کریم کے ذریعے کیا کریں، روشن کریں، منور کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ علم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے نا۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ قرآن کریم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور قرآن کریم سے ہٹ کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کی ایسا لگتا ہے کہ کہاں پر ہیں وہ، تاریکیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، جہالت میں ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ تو ہم ان کی زندگی میں کیا کریں۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پس رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ہی اپنے رحمت میں داخل کرے گا اپنی طرف سے اور اپنے فضل میں، اور وہ انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ اب دیکھیے قرآن بھی آ چکا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس دلیل بھی آ چکی ہے، نور اور روشنی آ چکی ہے نا، ثبوت سب کچھ آ چکا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو کام تھا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے، اس نے قرآن بھیج دیا، اس نے روشنی، اس نے علم سب کچھ بھیج دیا۔ اب رہا ہمارا کام، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، ماننا ہے ہمیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ایمان لے آؤ اللہ پر۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی توحید، اس کی صفات، اس کے حقوق، ہر چیز پر ایمان لے کر آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور پکڑ لیں۔ اب کس چیز کو دیکھیے، بہی کا جو مرجع ہے وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ کیا کریں؟ پختہ کریں۔ اور دوسرا اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا، کہ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ تو ہم کسی بھی چیز کو مراد لیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کریم کے اصل میں ہے کیا؟ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کریم کو سے جب کوئی رشتہ اپنا کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو تلاش کر لیتا ہے، اللہ اسے مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی ذات نظر آتی ہے نا، اللہ کی طاقت و قوت، رحمت، محبت، سبھی کچھ نظر آتا ہے نا۔ تو اب ضرورت اس بات کی کہ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا۔ اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ انسان کب جمے گا؟ ایمان کی تجدید کب ہوگی یا ایمان کا اضافہ کب ہوگا؟ جبکہ قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیے وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا مطلب ہوتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو صرف فزیکلی یا ظاہری طور پر ہی مضبوطی کے ساتھ نہ تھامیں کہ ہاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر رکھیں، گمنے نہ دیں، صرف یہی اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ تھاما کب جائے گا؟ جبکہ ہم اس کے الفاظ، اس کے معنی پر غور و فکر کریں، اس کی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی گہرائی میں اتریں، اس کی حقیقت یعنی اس کی جو حکمتیں ہیں اسے جانیں، اور پھر کیا کریں؟ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں، قرآن کو تھام سکتے ہیں، قرآن پر عمل کر کے ہی ہم قرآن کو مضبوطی دے سکتے ہیں۔ ہمارا عمل، ہم اپنے عمل کے ذریعے بھی قرآن کو مضبوط کیا کریں، عمل سے ثبوت فراہم کیا کریں کہ ہاں قرآن سچا ہے، سچا کلام ہے۔ تو وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بھی رشتہ مضبوط کرنا ہے اور قرآن سے بھی رشتہ مضبوط کرنا ہے نا، دونوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی کوشش کریں، ہے نا، جیسے نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں نا، ان تمام چیزوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے ہم کیا کریں؟ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور قرآن سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہم سب بھی کرتے ہیں نا کہ اگر جب تک ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہو گیا ہے، ہم اللہ سے قریب ہو گئے ہیں۔ ایمان اس وقت ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت بڑھ گیا ہے جس وقت ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور جب ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ایمان سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں نا۔ تو یہ ایک حقیقت، ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ واقعی قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اب دیکھیے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فائدے ضرور بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیں لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ ہر انسان یہ سوال کرتا ہے نا، ملے گا کیا؟ جیسے جادوگر جب آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے جب مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا فرعون سے آ کر کہ اگر ہم جیت گئے، اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ میرا تقرب، میرا قرب ملے گا، میرے قریب ہو جاؤ گے، مقرب بندے وزیر بن جاؤ گے میرے، ہے نا۔ تو یہی چیز کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کہتا ہے نا کہ یہ کرو یہ کرو، تو ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ اس کو کرنے سے فائدہ ہی ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تم باقی ایمان لے کر آؤ گے اللہ پر، شعوری اور حقیقی ایمان،
और सिर्फ ईमान ही नहीं लेकर आओगे जिंदगी भर, उस पर क्या रहोगे, साबित कदमी का सबूत होगे, जमे रहोगे, डटे रहोगे, मरते दम तक अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे और कुरान से रिश्ता मरते दम तक मजबूत रखोगे, तो फायदा क्या होगा, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फज़लिन, जल्दी ही अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने रहमत में और अपने फजल में दाखिल करेगा। देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है, ईमान की चाहे जिंदगी हो या कुरान की जिंदगी हो, ये जिंदगी इंसान की जिंदगी में क्या है, रहमतें बरसती हैं, ऐसी जिंदगी में रहमतें दाखिल होती हैं, यानी रहमतों का नुज़ूल होता है। देखिए कुरान करीम अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है ना, तो जब कोई कुरान करीम से रिश्ता मजबूत करेगा तो क्या होगा, अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया वो, अल्लाह ताला की रहमत उसके ऊपर नाजिल होंगी। कुरान करीम में भी ये बात कही गई ना कि तुम क्या करो, कुरान करीम जिसको पढ़ा जाया करो तो तुम खामोशी के साथ सुना करो, तवज्जो के साथ गौर से, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान करीम ये अल्लाह ताला के रहमत के नुज़ूल का जरिया है। देखिए हम में से कोई दुआ करता है ना कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा, और हम चाहते भी ये हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा। तो रहमत अगर हम ये चाहते हैं और दुआएं करते हैं तो कोशिश क्या करना होगी, कुरान से रिश्ता मजबूत करें। कुरान करीम से रिश्ता मजबूत होने के बाद अल्लाह ताला की रहमतें दाखिल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। तो अल्लाह के रहमत में दाखिल होना है तो अल्लाह से भी रिश्ता मजबूत करना चाहिए हमें, और कुरान से रिश्ता मजबूत करें और सही मानों में ईमान लेकर आए। ये अल्लाह ताला के रहमत हासिल करने का जरिया है, रहमतों के हुसूल का जरिया है, रहमतों में के दुखुल का जरिया है ये। और क्या चीज मिलेगी, बफज़लिन, रहमतों से बढ़कर फिर और चीज अल्लाह ताला का मजीद फजल मिलेगा, मजीद नेमतें। देखिए कुरान करीम के अंदर बड़ी बरकतें हैं। कुरान करीम के मुताबिक जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो उसकी जिंदगी में रहमतें भी नाजिल होती हैं और बरकतें भी नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला का फजल नाजिल होता है, नेमतों में भी इजाफा, जिंदगी में खैर बरकत, है ना। और बहुत सारे ऐसे ऐसे फजल हैं कि कहाँ तक उनका नाम लिया जाए, आपके सामने भी इस तरह के तमाम चीजें सामने आ रही होंगे, अल्लाह ताला के बहुत सारे फजल सामने आ रहे होंगे हमारी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में, है ना। लगता है कि सब कुछ क्या है, कुरान करीम की शायद बरकत है ये, शायद ये कुरान करीम से रिश्ता मजबूत करना के फायदे हैं ये, है ना। और सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। सही रास्ते मिल गए, इससे बढ़कर और क्या नेमत है, हिदायत मिल गई और इससे बढ़कर क्या नेमत है ना। हिदायत देखिए सबसे बड़ी नेमत है ना, तो ये मिल गए हमें कुरान के जरिए, अब और क्या चाहिए, सीधा रास्ता मिल गया, जन्नत तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है, कामयाबी का रास्ता मिल चुका है ना, और क्या चाहिए, सबसे बड़ी नेमत है ये। आगे क्या है तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज मुकम्मल नहीं हो पाएगी। अगर इस ताल्लुक से आप लोग कुछ बयान करना चाहते हैं कि कुरान करीम से रिश्ता मजबूत करने के बजाय आपकी जिंदगी में किस तरह के रहमतें या बरकतें या फजल सामने आए, है ना, अगर आप लोग चाहें तो इस चीज़ को शेयर कर सकती हैं, बयान कर सकती हैं आप लोग, अगर कुछ कहना चाहें तो इस चीज़ का इजहार किया कीजिए कि आपकी जिंदगी में इस तरह के क्या चीज़ सामने आई। जी कुछ कहना है किसी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे घरों जी में बताइए। खानदान में दिक्कतें पाई जाती थी और ऐसी ऐसी बातें पाई जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हमें उसकी समझ आ गई कि हमें ये बातें क्या कैसी हैं, आवाज सही है नहीं आ या रही, नहीं है। आपकी आवाज बहुत और रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घरों में जो हमारे खानदान में और बहुत सी बातें पाई जाती थी, बहुत सी रस्में अपनाई जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को पढ़कर और इसको समझकर हमने उन नज़मों से क्या कि अपना किनारा करा और हम उससे बचने की हमने कोशिश करी कि हम उससे बचेंगे, गलत है। इसी तरीके से हमने उस पर जी जी अपने ऊपर उनको हटा दिया, हमने अपने ऊपर से उन रस्मों को उनको जी, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हालांकि हुई लोग सुन। बुराई भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जी फिर भी हमने उनसे इनहराफ किया। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और मोमिना बाजी कि हमने इससे बचने का इस उससे वो नहीं करा है कि हम अपने खानदान वालों के उसमें शरीक हो जाएं कि हमारी वो होगी कि भाई ये हमारी बहन के घर प्रोग्राम है या हमारे भाई के घर प्रोग्राम है, ये सही है कि गलत है, हमें रिश्ता निभाना था। नहीं, जो गलत है वो बहन के घर हो या भाई के घर हो या किसी पड़ोसी या किसी के घर भी हो, जो कुरान की उससे गलत है तो वो गलत ही है, उसमें हमें शिरकत नहीं करना है। जी जी, बहुत अच्छी बात। जी हुमा बाजी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कुरान जब से ये तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़िंदगी में तो चेंजेस आए हैं, हर बात क्लियर आने लगी समझ में, लेकिन
مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جیسے کبھی کوئی سوال ہوتا ہے ذہن میں، پریشان ہوتے ہیں، تو جب دوسرے دن کلاس ہوتا ہے الحمدللہ تو اس سوال کا جواب مجھے خود مل جاتا ہے. مجھے مطلب ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی سے پوچھنے کی، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً راستہ دکھا دیتا ہے. یہ سب سے بڑی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا مطلب اللہ پاک جو ہے وہ راستہ دکھاتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں ایسے جاؤ ایسے جاؤ. تو جو سوال دماغ میں آتا ہے تو فوراً مجھے دوسرے دن جواب مل جاتا ہے الحمدللہ. قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے نا کہ قرآن کریم تمام سوالوں کا جواب ہے، تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں ہے. بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں نا قرآن کریم کے ذریعے. جی شاہین بازی. جی کیفیت ہے الحمدللہ. اللہ کا اتنا شکر، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، اور رات دن بھی اس کے آگے سجدے کریں تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑا. اور ہمارے یہ حقیقت ہے جیسے ہما بہن کہہ رہی ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر سوال کا جواب ہمیں قرآن میں فوراً مل جاتا ہے، اور ہمارے دل کو تسلی و سکون ہو جاتا ہے. اپنی ہر پریشانی سے ہر طرح سے ہمیں سکون مل جاتا ہے. الحمدللہ بہت سکون ملا اس قرآن کو پڑھ کے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے آخری دم تک. آمین. جی شاہین. جی اس قرآن کو پہلے تو میں کچھ جانتی نہیں تھی، لیکن جب سے قرآن پڑھا اور میں نے سمجھا تو مطلب مردوں کو میں تو یہ سمجھتی تھی کہ انسان ہم کو نہیں نہا دیتے ہیں، نہا غسل کر دیں گے مطلب جب یہ میں نے پڑھا تو اندر اتنی چینج آئی کہ میں نے اپنی امی کا غسل خود کیا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی امی کا غسل کرنے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری امی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس قرآن سے. جی چلیے آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کی مغفرت فرمائے. اور اچھی بات ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے آپ کی زندگی میں چینجنگ آئی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیجیے. جی اور کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی الحمدللہ قرآن شریف پہلے ہم لوگ اتنا شرک میں کہ ترجمہ پڑھنا شروع کرے، جب سے قرآن شریف کے یعنی کہ ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کرے الحمدللہ. جب جی جی بولے. مائک بند ہو گیا آپ کا. آپ کا مائک بند ہے. کسی اور کو کچھ اور کہنا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ساتھ میں فرق معلوم ہو رہا ترجمہ پڑھنے تو میری اور میرے گھر والوں کی الحمدللہ پوری زندگی بدل گئی. جی اب مطلب کوئی اگر بے وجہ رسم رواج میں بھی اگر ہم مطلب دعوت آئے تو ہم نہیں جاتے، تو ہم یہ سوچتے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز سے بچا لیے. جی رشتے دار یا پھر کوئی اور مطلب اپنے جو پڑوسی احباب ہیں انہوں اگر ناراض ہوئے تو چل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ فرق ہم کو معلوم ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کی ہے ہمیں. چلیے ٹھیک ہے اتنا رہے. اور جی گلبا جی بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جب سے الحمدللہ قرآن کی تفسیر معنی سب سمجھنا شروع کرا ہے تو اللہ کا شکر ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے ہمارا ایمان زیادہ مکمل ہو گیا ہے، زیادہ پختہ ہو گیا ہے. اگر کوئی بھی پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو جھٹ سے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی دور کرے گا انشاءاللہ اس کو. تو مجھے تو اپنے ایمان کی پختگی میں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ایمان بہت پختہ ہوا ہے. جی 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 صحیح بات ہے، اچھی بات ہے. جی اور کسی کو کچھ اور تو نہیں کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے تاثرات سن کر. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ہم کمپلیٹ کریں گے. ہلو السلام علیکم. اور باقی اگر کسی کو کچھ اور کہنا ہو تو کل آپ لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.